स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछली क्लास में हमने किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए। कुछ क्वेश्चन सिमेट्री के ऊपर बेस्ड थे और फिर रियल सेल के बारे में कुछ बातें की थी। आज स्टोरी को आगे बढ़ाने के पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। एक होमवर्क भी दिया था आपको मैंने, वो भी कर देता हूँ और फिर आगे की पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले एक छोटा क्वेश्चन। ये एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बदल रहा है, कांस्टेंट नहीं है। ये एक पीस ऑफ वायर है, इधर थिन है और इधर थिक होता जा रहा है। एक कोन के फ्रस्टम के जैसा शेप है इसका। इसको आपने एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसको आपने V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब आपको मुझे बताना है पॉइंट A और पॉइंट B, इन दो पॉइंट्स में से किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ी है। At which of the 2 points A and B the electric field has higher magnitude, electric field? At which of the 2 points electric field is higher? That is the question. देखो, पूरे लूप में किसी भी क्रॉस सेक्शन पर करंट की वैल्यू सेम है। अगर इस क्रॉस सेक्शन पर पॉइंट ए पर, यहाँ चलो पॉइंट ए को यही मान लो ना और बी को यही मान लो, बातचीत करने में ड्राइंग ठीक रहेगा, साफ सुथरा। तो इस क्रॉस सेक्शन पर अगर करंट की वैल्यू आई है तो इस क्रॉस सेक्शन पे भी करंट आई ही है। यहां कहीं बीच में एक क्रॉस सेक्शन ले तो यहां भी करंट आई ही, हर जगह यहां भी करंट आई। किसी भी क्रॉस सेक्शन पे करंट सेम है इस पूरे लूप में, बट करंट डेंसिटी इज नॉट सेम बिकॉज क्रॉस सेक्शनल एरिया इज चेंजिंग, therefore current density is changing. Current at A is same as current at B, but obviously current density at A is higher than current density at B. Current density किसको कहते हैं? Current divided by cross sectional area in simple language. अगर यहाँ current I है divided by this area of this circle, that is current density at this location. Similarly, current density at this location is this current divided by that cross sectional area. So because cross sectional area is large here, for the same value of current, current density is smaller. Current density is higher, current density is smaller. Current density at A is higher. Now, Ohm's law in microscopic form says that J is equal to sigma E. ओम्स लॉ जो हमने सबसे पहले लिखा था वो लिखा था एट एनी पॉइंट इनसाइड ए कंडक्टर द करंट डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर एट ए गिवन टेम्परेचर। अ गिवन मटेरियल हैज ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ सिग्मा. So sigma is same at this location, 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 because it is made of one material. The whole wire is made of one material.
material remains same means conductivity is same. So sigma is same everywhere, but current density is not same. Current density at A is higher than current density at B. So this tells you that sigma into EA, इस लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है EA into sigma, that is current density at this location. इस लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है that is EB into sigma, that is current density at this location. So obviously we conclude that electric field at A is greater than electric field at B. So throughout the conductor you will not have same electric field if the cross sectional area is changing. Remember this fact. It is electric field is potential gradient, rate of change of potential. When we studied heat transfer, conduction of heat, there also if you use a conductor like this having variable cross section, this end is hot end, this end is cold end, then the heat current at every cross section will remain same in steady state. Heat current will remain same, but the temperature gradient, जैसे यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही वहाँ टेम्परेचर ग्रेडियंट विल नॉट बी सेम एट ईच क्रॉस सेक्शन. जैसे यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफरेंट, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट, देयर ऑल्सो टेम्परेचर ग्रेडियंट विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस. Okay, here is your next question. There is a circuit, I am drawing a circuit. Just a minute. There is 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 4 ohm, 4 ohm, 4 ohm. Let us say we connect a 12 volt ideal cell to this circuit. Tell me the value of current in this branch. Find current in this branch. Please pause the video and solve the question. All of you should attempt it. Those of you who are enjoying a cup of tea along with this lecture, please put down your tea cup and start working. Just by watching a lecture, you will learn nothing. You learn only when you practice. So do your workings. Please, all of you. Now, this particular circuit has a fair amount of symmetry. Nobody can challenge me if I say that P and Q must have same potential. I don't think anybody is going to challenge me. What is difference between point P and Q? If I start walking from A to B via this path, the location of P is identical to location of Q when I walk from A to B via this path. So P and Q cannot have different potential. There is no difference in this path and this path. In a very similar manner, this point T and S cannot have different potentials. So I conclude that Vp is same as Vq, Vt is same as Vs. And when Vp is same as Vq, this resistance cannot have any current. P and Q are points at
same potential, when you fix a resistance between 2 points having same potential, there will be no current through the resistance. So, we can just omit this resistance, we can just remove this resistance from the circuit. It will make no difference to the entire circuit. Or you can also connect P and Q together and tie them together. That is also perfectly all right. So, let us at least remove this. If you wish, you can connect P and Q, you can join P and Q together, and for same reason this resistance can also be removed. You can remove this one. So, now the circuit is pretty straightforward. This is a path which is independent of this, these two are in parallel. So, if you wish to find equivalent resistance, yes, it can be done. 2, 2, 4, 2, 6. 6 ohm is in parallel with 12 ohm. So, you can find the equivalent resistance. But okay, the question asks you to find current. If you have realized current is same everywhere here, it is a 6 ohm resistance connected to a 12 volt cell. So, no calculation is required. We know that current here is 2 ampere, and here the current is, of course, 12 ohm resistance, 12 volt cell, the current is 1 ampere. The total current supplied by the cell is 3 ampere. With this data, can you tell me, without doing any working, can you tell me what is the total equivalent resistance? Yes, 12 volt cell supplies 3 ampere current. 12 volt cell supplies 3 ampere current. So, equivalent resistance must be 4 ohm, V by I. Yes, this is 6, this is 12, 6 and 12 in parallel, 6 into 12 by 6 plus 12, 6 into 12, 72 by 18, that is 4, has to be. Okay. Then I gave you one homework in the last class. वो क्यूब वाला क्वेश्चन आपको दिया था मैंने. Each and every arm side has same resistance R. Each and every arm has same resistance R, and I asked you to find equivalent resistance between these 2 points A and B. So, that means battery, if at all it is there, it will be connected across A and B. Imagine a battery connected to A and B like this. Okay. Now, can you identify points at symmetrical location? Yes. At least all of us would agree that this point M and this point N will have no difference as far as potential is concerned. बैटरी के रेस्पेक्ट में देखिए, पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल किसी के भी रेस्पेक्ट में देखिए, पॉइंट M और N में कोई भी फर्क दिखता है क्या? नो, नॉट एट ऑल. दे आर वेरी मच आइडेंटिकल पॉइंट्स. ओके, ये एक क्यूब है ऐसा मान लो, हालांकि ये क्यूब नहीं है पर ठीक है, क्यूब मान लो. ये ऐसा बैटरी लगाया ना तुमने, यहां से यहां के बीच में एक बैटरी लगाया, बैटरी यहां से यहां जा रही है, ऐसा ए से बी, बैटरी ऐसे इमेजिन करो. अब ये दोनों पॉइंट में क्या फर्क है भाई? अगर ये बैटरी है, ये बैटरी है, मेरा हाथ ये बैटरी है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट में कोई कैसे फर्क कर सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस? देयर इज नो डिफरेंस. सिमिलरली ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स,
इनमें भी कोई डिफरेंस नहीं। अगर ये बैटरी का पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये दोनों पॉइंट भी आइडेंटिकल होंगे, ये दोनों पॉइंट भी आइडेंटिकल होगा। सो M and N आर पॉइंट्स विच आर at same potential beyond doubt, and P and Q are two other points which are at same potential. So M and N are at same potential and P and Q are at same potential. These are points at same potential. So what I am going to do now is I will redraw the circuit after joining M and N and P and Q. I'll join M and N together and I will join P and Q together and then try to redraw the circuit. How will the circuit look like? Look at this. I am redrawing the circuit, though you can always pause the video and try it. Try redrawing the circuit with M and N connected together and P and Q connected together. Do it. This is how it will look like. This is point A. I am numbering the resistors so that you can identify. This is resistance 1, this is resistance 2. 1 is going to N, 2 is going to M. So M N. Okay. So A से एक रेजिस्टेंस N को गया, एक M को गया, ये 1 और 2 हो गए, M और N को गए. Similarly, starting from B, there are two resistors, call them 3 and 4, which are connected to M and N. So ये है 3, ये है 4 कनेक्टेड टू B. तो 1 2 3 4 को मैंने ड्रॉ कर दिया. अब देखो, M से एक रेजिस्टेंस P को जा रहा है, कॉल इट 5. N से एक रेजिस्टेंस Q को जा रहा है, कॉल इट 6. तो P एंड Q आर सेम पॉइंट्स. M और N दोनों से सेम पॉइंट P और Q पे दो रेजिस्टेंस जा रहे हैं. तो इसको मैं ऐसा दिखा देता हूं. ये पॉइंट है P एज वेल एज Q. ये रेजिस्टेंस है 5 एंड 6. कैसे? M से चलकर एक रेजिस्टेंस P को गया. ये ब्लू डॉट्स हैं दोनों, P और Q. ऐसे बना देता हूं, दोनों को एक साथ बांध दिया. और ये रेड डॉट्स हैं, M और N एक साथ बांध दिए. तो M से चलकर P और N से चलकर Q. 5 6. नेक्स्ट, अब यहां से देखिए, इस पॉइंट का भी नाम एक रख देता हूं, S, और इट पॉइंट का नाम रख देता हूं T. एक रेजिस्टेंस यहां दिखाना छोड़ दिया. A से S एक रेजिस्टेंस है, A से S एक रेजिस्टेंस है, और फिर S से P और Q दो रेजिस्टेंस जा रहे हैं. देखिए ध्यान से, A से S, A से S, ये पॉइंट का नाम रखा S. A से S में ये रेजिस्टेंस नंबर लेट अस से 7, और फिर S से दोनों ब्लू डॉट्स पे दो रेजिस्टेंस जा रहे हैं, 8 और 9 नंबर. तो यहां S से ब्लू डॉट्स पर दो रेजिस्टेंस जा रहे हैं. ये 8 8 9, राइट? नाउ कंसिडर दिस पॉइंट T. B से T, दिस रेजिस्टेंस नंबर 10.
T, and then from T to blue dots P and Q, this is 11 and this is 12. तो टोटल 12 रेजिस्टेंस है and we have drawn all of them. So this entire circuit is like this, and the two terminals are A and B. Now I think I can leave it to you to do the calculations. क्या करना है? कुछ नहीं, ये दोनों पैरेलल में, 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 ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या दिखेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं दिखता है. ये 1 and 2 R and R in parallel will become R by 2. This red dot 3 and 4 in parallel becomes R by 2, right? Then this will also become R by 2. This blue dot now this is also R by 2. Similarly, this one is R by 2, this is R, R by 2, this is R, this is B, this is A. Now can you see something? Now this R and R by 2, this R and R by 2, they are in series, very much in series. आप पहले इसको बना लीजिए, मैं इसी में मिटा के आगे बना दे रहा हूँ. You can draw another diagram after this. So this R and R by 2 in series will make 3 R by 2. R and R by 2 makes 3 R by 2. Similarly, this R and R by 2 makes 3 R by 2. अब कुछ दिखा? अब दिख गया. ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है. ये दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो 1 है, ये दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो भी 1 है. अब ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसमें आप इस R by 2 को रिमूव कर सकते हो. इस R by 2 को रिमूव कर दो, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और फिर उनको पैरेलल में जोड़ दो. सो दैट विल बी योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ओके, चलो अब हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं. We were talking about cells. To refresh your memory, let me again start with a question. Let us talk about cells, real cells, but we will start talking about real cells using this question. This is a real cell. Its EMF is 10 volt and internal resistance is 1 ohm. These are two terminals of this real cell. These are two terminals of this real cell. Now, this cell is connected to another cell like this. This cell is connected to another cell like this. This is also a real cell, and its internal resistance is 1 ohm. Its EMF is 8 volt.
सो हियर आर टू सेल्स इन द सर्किट बेसिकली, सिर्फ दो सेल को आपस में जोड़ दिया गया है. इंटरनल रेजिस्टेंसेज ऑफ दीज टू सेल्स आर 1 ohm each, but their EMF are 10 volt and 8 volt. Two cells आपस में connect कर दिया. Now the question, A and B are terminals of this cell. The question is find potential difference between the terminals of the cell 1. Cell 1 मतलब ये cell. Find the potential difference between the terminals of the cell 1. Very easy question. Please do it. What is potential difference between the terminals of cell 1? ऊपर वाले सेल के टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताइए. Very simple and straightforward question. First, you need to calculate current. कैलकुलेशन करते समय, आप करंट निकालते समय, यू कैन जस्ट इमेजिन कि ये एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है, ये एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है, एंड दीज आर टू रेजिस्टेंसेस. वो सेल का रेजिस्टेंस है या बाहर का कोई रेजिस्टेंस है, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू कैलकुलेशन ऑफ करंट. करंट के कैलकुलेशन में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो सेल का अपना रेजिस्टेंस है या कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है. So you can treat it as an usual circuit having two sources of EMF and two resistances. So as we learnt in, I guess, last to last class, that in all single loop circuits, current has only one value. So let us say current in this circuit is I. So I is current everywhere throughout the loop. It cannot have any other value. Now to get the value of I, you can use Kirchhoff's law, or if you remember that thing, that net EMF by net resistance, you can do that also. So whichever way you want, you can do it. Okay, let me repeat Kirchhoff's law just for sake of repetition. Start from any point, let us say VA. I am moving anti-clockwise. VA, gain of 8 volt. Then drop of IR2. IR2. R2 is 1, drop. Again drop of IR2. Then gain of 10 volt. You are back to A. VA plus 8 minus IR plus 10 VA. Simplify this. You get 2I is equal to 18. Which is I is equal to 9 ampere, right? So 9 ampere is quite a current, big current. So 9 ampere current is flowing through this circuit. Now we have been asked to find potential difference across the terminals of the cell. So what we need to do is, you need to walk from A to B. You can take any path. VA, drop of 10 volt, drop of 10 volt. Now you are going this way, current is going this way. So when you cross the resistance, there will be a rise in potential. I into R. I is 9, resistance is 1. Drop of 10 volt, rise of I into R. I is 9, resistance is 1. Now you are at point B. So VA minus VB, which we need to calculate, is 19 volt. Am I right? No, it cannot be. I am wrong. It is only 1 volt. So VA minus VB is 1 volt. That means, though it is a cell of 10 volt EMF, but right now, because a huge current is passing through it, the potential difference between its terminals has dropped drastically. It is because of the drop in potential due to internal resistance of the cell. तो सेल का एक्चुअल ईएमएफ तो बहुत बड़ा है, लेकिन अभी जो हमें देखने को मिल रहा है, सेल जो है उसके टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस काफ़ी छोटा है. उसकी वजह यह है कि अभी सेल के थ्रू
एक बड़ा करंट पास हो रहा है। ओके, जब भी सेल डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्जिंग सेल है, इसमें करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, इसकी केमिकल एनर्जी कम होती जा रही है। जब भी ऐसा होता है तो सेल के टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उसके ईएमएफ से कम होता है, जो हमें देखने को मिल रहा है। ओके, एक्चुअली जैसे रेजिस्टेंसेस को आप ग्रुप करके एक नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस, ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस बनाते हैं, वैसे ही हम कई सेल्स को ग्रुप करके एक बैटरी बनाते हैं। सो बैटरी इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। फॉर वेरियस रीजन्स we may want to connect more than one cells in series to form a battery, and there may be instances when we would prefer to connect cells in parallel to form a battery. So just like resistances, the primary form of connection for two or more cells is series connection and parallel connection, and then of course there can be mix of those two. So the most simple kind of connection for two or more cells is of course series and parallel connection. So let us consider two or more cells which are connected in series to one another like this. See, this is a real cell having EMF E1 and its internal resistance is R1. So symbolically, we represent a real cell like this. We show its EMF and then in series we show its internal resistance. So if somebody asks what is potential difference between the terminals of this cell, we need to tell potential difference between these 2 points. These are terminals. इसी के अंदर EMF की प्रॉपर्टी भी है, इसी के अंदर रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी भी है. Similarly, this is your cell number 2. There could be many more cells. I am just showing 3 of them. So here are 3 cells connected in series, and of course these 2 points are terminals of this group of cells, and this is a battery. You can say we have a battery and terminals of battery are A and B. We have connected more than one cells together in series. It forms a battery. Most primary reason for having a battery like this will be to get higher EMF, to get higher voltage. अगर ये 1.5 वोल्ट का सेल है और आपको एक बल्ब ऑपरेट करना है जिसकी रेटिंग 4.5 वोल्ट है, तो आप 1.5, 1.5, 1.5 वोल्ट के 3 सेल को सीरीज में लगा दोगे तो ओवरऑल 4.5 वोल्ट का ईएमएफ तुम्हें मिलेगा. ओके, तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि दिस इज एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ये चीज क्या हो गई? एक बैटरी हो गई. डू यू एग्री? दिस इज द बैटरी एंड दिस इज एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. जैसे कि एक बल्ब हो गया. इस बैटरी से हम एक बल्ब को पावर दे रहे हैं, ऐसा कुछ. अब आपसे अगर पूछा जाए कि इस ग्रुप ऑफ सेल्स का इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्विवेलेंट क्या होगा मींस इस पूरे ग्रुप ऑफ सेल को अगर मैं एक सिंगल सेल से रिप्लेस करूं तो उसका ईएमएफ कितना होना चाहिए, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए. अगर मैं इस ग्रुप ऑफ सेल को एक सिंगल सेल से रिप्लेस करूं तो उसका ईएमएफ क्या होना चाहिए और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए. तो इट्स
pretty simple, not difficult at all. Suppose this is an equivalent cell. This is इक्विवेलेंट सेल, जिसका ईएमएफ है ई नॉट और इंटरनल रेजिस्टेंस है आर नॉट. दिस इज इक्विवेलेंट सेल ऑफ फॉर दिस ग्रुप. इसका रिप्लेसमेंट है ये. इक्विवेलेंट का मतलब है कि अगर सेम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इस इक्विवेलेंट सेल से कनेक्ट करें या इस ग्रुप ऑफ सेल से कनेक्ट करें, the external resistance should get same amount of current. ये जो बैटरी है made by combining these three cells, ये बैटरी इस external resistance को I करंट दे रही है. इन तीनों सेल का इक्विवेलेंट एक ऐसा सेल है, एक नया सेल जिसको सेम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया और हमें सेम करंट मिला. मोटा मोटी यही इक्विवेलेंट सेल, ये इक्विवेलेंट सेल है. तो इक्विवेलेंट सेल का जो ईएमएफ है वो बहुत आसान है लिखना. इट इज E1 प्लस E2 प्लस E3. और इक्विवेलेंट सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इट इज R1 प्लस R2 प्लस R3. फिर भी मैं बिल्कुल फॉर्मल भाषा में लिख देता हूं. देखिए, इस सर्किट में जो करंट आई होगा, आई इस सर्किट में, उस करंट की वैल्यू होगी, कैसे लिखेंगे? किरचॉफ्स लॉ से लिख सकते हैं. किरचॉफ्स लॉ, VA माइनस IR माइनस IR3 प्लस E3 माइनस IR2 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस E1 इज इक्वल टू V. ऐसा लिखना पड़ेगा, ये लिख लोगे? चलो लिख देते हैं एक बार और. VA माइनस R माइनस IR माइनस IR3 प्लस E3 माइनस IR2. सभी जगह करंट आई है. प्लस E2 माइनस IR1 प्लस E1 is VA. माइनस IR2 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस E1. VA कैंसिल हो गया. सिंप्लीफाई करो, यू गेट E1 प्लस E2 प्लस E3 R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R. यही करंट है इस सर्किट में. अगर आपको वो रूल याद हो सिंगल लूप सर्किट में जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले नेट ईएमएफ को देखो, एक बार पूरे लूप में घूम जाओ, देखो ईएमएफ कितना है. E3 प्लस E2 प्लस E1, टोटल E1 प्लस E2 प्लस E3 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R, R1 प्लस R2 प्लस R3. इस सर्किट में अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ करंट, तो ये तो आप आसानी से लिख सकते हो E नॉट बाई R नॉट प्लस R. ये तो लिख लोगे ना. ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में. एक E नॉट वोल्ट की बैटरी, E नॉट ईएमएफ वाली बैटरी. करंट लिखने के लिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस है या कोई बाहरी रेजिस्टेंस है. वो तो करंट डिसाइड करने में एक ही बिहेवियर है, चाहे वो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हो या कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो. So current in this loop is EMF divided by this. Now what do we want? We want these two loops should have same current. तभी मैं इस सेल को इस ग्रुप का इक्विवेलेंट बोलूंगा. These two loops should have same current. अब इसको कंपेयर करो. ये इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो. दोनों करंट सेम होने चाहिए. दोनों करंट सेम होने चाहिए. इनफैक्ट दोनों ईएमएफ भी सेम होने चाहिए.
करंट सेम होने के लिए एकदम सिंपल कंपैरिजन क्या बोलता है कि जो इक्विवेलेंट सेल है उसका ईएमएफ ई नॉट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। तो सभी सेल के ईएमएफ को जोड़ दीजिए, वही हमारे इक्विवेलेंट सेल का ईएमएफ होना चाहिए। यहाँ जो न्यूमरेटर में ई नॉट है उसकी जगह पे यहाँ सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी E1 प्लस E2 प्लस E3। तो दोनों आई सेम होने के लिए दोनों न्यूमरेटर सेम होने चाहिए, ऐसा बोल रहा हूँ। सिमिलरली डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे तो यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ R1 प्लस R2 प्लस R3 है, R नॉट है। सो विच मीन्स R नॉट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मीनिंग ये हुआ कि इक्विवेलेंट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इन सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है। इक्विवेलेंट सेल का ईएमएफ इन सेल के ईएमएफ के सम के बराबर होता है। वेरी सिंपल भाई। अगर 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट के सेल हों तो ईएमएफ हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम 1 ओम 1 ओम हो तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 3। तो हम बोल सकते हैं कि ये पूरे ग्रुप ऑफ सेल को हम एक सेल से रिप्लेस करेंगे जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम और जिसका ईएमएफ है 1 प्लस 2 प्लस 3, E1 प्लस E2 प्लस E3। सो सिंपल। ध्यान दीजिएगा, बल्कि एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, नोट क्यों लिखना, इसी से आप सीख जाएंगे। These are all identical cells. These are all identical cells. This is an external resistance. What will be current in this circuit? What will be current in this circuit? Five identical cells are connected as shown. What is current in this circuit? यहाँ पे ध्यान ये देना है कि one of the cells is connected with its polarity reversed. I mean plus minus plus minus plus minus minus plus. So actually in this kind of circuit, in this kind of loop, in this kind of loop, the effective EMF, the equivalent EMF E naught will be E plus E plus E minus E plus E। अगर हम पूरे लूप के ईएमएफ को देखें, सिर्फ यहां से आगे बढ़े प्लस ई, यहां भी प्लस ई, यहां भी प्लस ई, यहां भी प्लस ई, लेकिन यहां माइनस ई। तो प्लस ई माइनस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, 4 बार 4e प्लस 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 ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई और एक बार माइनस ई। सो 4 सेल एकदम सीरीज में विथ प्रॉपर पोलैरिटी लगे हैं, एक उल्टा लगा है, तो जो नेट ईएमएफ है वो 3e हो गया। 5 सेल हैं, जल्दबाजी में 5e नहीं लिखना, एक सेल उल्टा लगा है, तो एक्चुअली में नेट ईएमएफ 3e हो गया। लेकिन इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स इट विल बी 5R। उसको उल्टा और सीधा होने से क्या मतलब है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी 5R। सो दिस सर्किट इज इफेक्टिवली सेम एज दिस सर्किट, 5R
3E. This group of cells, this battery has an effective EMF of 3E and effective internal resistance of 5R. So 3E 5R, इस पूरे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम एक सेल से रिप्लेस कर सकते हैं. EMF 3E, internal resistance 5R, and this is the external resistance. Therefore current will be total EMF by total resistance. So this is the value of current in this particular loop. Okay. Now let us consider cells in parallel. For the sake of simplicity, I am just showing two cells which are in parallel. There could be many more. A battery has been made by connecting two cells in parallel. The basic benefit of having two cells in parallel is to have a circuit going on for a larger period of time. दोनों सेल के ऊपर लोड कम पड़ेगा, दोनों सेल से थोड़े थोड़े करंट सप्लाई होंगे और एक्सटर्नल जैसे कि एक बल्ब लगाया आपने तो बल्ब को दोनों करंट थोड़ा थोड़ा सेल करंट देंगे, दोनों सेल थोड़ा थोड़ा करंट देंगे बल्ब को और दोनों ही सेल लॉन्गर पीरियड तक लास्ट करेंगे, उनकी लाइफ बढ़ जाएगी. सो दिस इज आवर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. इसको एक सेल से जोड़ दें तो भी चलेगा बल्ब, दूसरे से जोड़ दें अकेला तो भी चलेगा, पर दोनों के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया है तो दोनों सेल की लाइफ बड़ी हो जाएगी. ये बैटरी के टर्मिनल्स हैं. फिर से इस ग्रुप ऑफ सेल्स का इक्विवेलेंट एक ऐसा सेल है जिसको सेम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करने पर इसमें सेम करंट फ्लो. अगर ऐसा है तो इसको हम इक्विवेलेंट सेल कहेंगे. एक सेल लगा दिया, सेम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सेम करंट फ्लो हो रहा है, इसको हम इक्विवेलेंट सेल कहेंगे. ठीक है. ओके. अब दोनों पैरेलल पाथ हैं. मान लो यहां पे करंट है I1 और यहां पे करंट है I2. I1 I2, I1 और I2 जुड़ करके हो गए I इज नथिंग बट I1 प्लस I2. राइट. अब देखना, इस सर्किट में आपको समझाने के लिए मैं इन पॉइंट्स के नाम लिख रहा हूं, C D E F G H. जरा देखो, लूप A C D B E F A को देखो, इस लूप को देखो.
इस लूप में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं, खुद कर पाओगे? VA माइनस IR माइनस I1 R1 प्लस E1 इज इक्वल टू VA लिखना पड़ेगा। चलो लिख देते हैं। VA माइनस IR, चलो मेरे साथ चलो, यहां करंट कितना है? स्मॉल I1। इस पूरे पाथ में करंट कितना है? स्मॉल I1। यहां ड्रॉप कितना हुआ? I1 R1। यहां गेन कितना हुआ? E1। कहां पहुंच गए? A पर। तो ये इक्वेशन क्या हुआ? आंसर है I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस IR। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, I1 इज इक्वल टू E1 बाय R1 I R बाय R1। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। ये ऐसा लूप लिया। अब ये लूप लो, ये लूप लो, लूप ACDBGHA, ऐसा ACDBGHA। फिर से लिख सकते हो, क्यों लिखे हैं? अरे कुल मिला के फर्क क्या है? E1 की जगह E2 आएगा, R1 की जगह R2 आएगा, बाकी क्या फर्क है? आप चाहो तो लिख लो, पर हम इसी को देख के सीधा ये इक्वेशन लिख दे रहे हैं कि वी विल गेट दिस इक्वेशन। I1 की जगह I2, E1 की जगह E2, R1 की जगह R2। ये ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक, अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो। क्यों कर रहा हूं ये सब मैं? I1 प्लस I2 इज कैपिटल I। तो ये दोनों ऐड करने से I1 प्लस I2 you get equal to this plus this, this plus this. So minus of R by R1, R by R2, बल्कि IR ऐसे कर देते हैं, इसको 1 1 ऐसा कर देते हैं। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये I1 प्लस I2 जो है ये I है, ये I है, और ये टर्म भी इधर कर देते हैं, तो I वाले सारे टर्म एक साथ, ये I1 प्लस I2 I हो गया, I इंटू 1, और इसको इधर शिफ्ट किया तो ये बन गया तुम्हारा R 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। This is equal to E1 R1 E2 R2। ठीक लिखा है? Now capital I can be written as E1 R1 E2 R2 by 1 plus R 1 by R1 plus 1 by R2। कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन है। दिस इज टोटल करंट। सो बेसिकली आई हैव सक्सेसफुली रिटर्न करंट I थ्रू दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अगर ऐसे दो सेल जुड़े हैं पैरेलल में, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू करंट क्या होगा, उस करंट को मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके लिए मैंने पहले ये लूप लिया, I1 लिखा, ये लूप लिया, I2 लिखा, दोनों को ऐड कर दिया, तो I1 प्लस I2 I हो गया। एक I यहाँ भी था, तो उस I और इस I को कॉमन करके ऐसा सिंप्लीफाई कर दिया। सो नाउ द लास्ट एक्सप्रेशन दिस वन, इसको मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दिस न्यूमरेटर,
इस न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मैं 1/R1 + 1/R2 से डिवाइड कर देता हूं। ये देखने में कुछ अजीब सा लगेगा और प्लीज समझिए, E1/R1 E2/R2 ये है ना न्यूमरेटर में, इसको डिवाइड करो 1/R1 1/R2 से, इस क्वांटिटी से न्यूमरेटर को डिवाइड किया। डिनोमिनेटर में भी ये करना पड़ेगा और ये ऐसा हो गया, ये 1 डिवाइडेड बाय 1/R1 + 1/R2 और यहां डिवाइड किया तो सिर्फ कैपिटल R बचा। ठीक है, अब देखना, अगर ये इक्विवेलेंट सेल है, अगर ये इक्विवेलेंट सेल है तो इस इक्विवेलेंट सेल वाले सर्किट में करंट को तुम क्या लिखने वाले थे, क्या लिखने वाले थे? ऐसा लिखने वाले थे, है ना, ऐसा लिखते हैं ना इसको। अब प्लीज इसको इक्वेशन ए बोल दे रहा हूं, इसको बी बोल दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, अगर ये इक्विवेलेंट सेल है तो यहां जो करंट होगा इट कैन बी रिटन लाइक दिस, और इस लूप में यहां जो करंट है इट कैन बी रिटन लाइक दिस। नाउ वी विल कंपेयर दीज टू इक्वेशंस बिकॉज इन बोथ द सर्किट्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर मस्ट हैव सेम करंट, so we will compare these two equations, this one and this one. इसमें भी कैपिटल R है डिनोमिनेटर में, इसमें भी कैपिटल R है। डिनोमिनेटर में एक रेजिस्टेंस का टर्म है, ये भी जो पूरा टर्म है इसका डायमेंशन रेजिस्टेंस का डायमेंशन। न्यूमरेटर में ईएमएफ है, अगर ध्यान से देखोगे तो इस पूरे टर्म का डायमेंशन भी ईएमएफ का डायमेंशन। So by comparing A and B, we say that ये जो मैं कर रहा हूं ये आपके NCERT बुक में ऐसा डेरिवेशन शायद किया हुआ है, सो मे बी कि ये स्कूल एग्जाम में भी आए, ध्यान दीजिएगा। अब कंपेयर करेंगे ए और बी को। वन टू वन कंपैरिजन, आर को छोड़ दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस which is same as saying that ये क्या मिला, इक्विवेलेंट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये दो सेल अगर ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड हो, इसको आप एक सेल से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो जो इक्विवेलेंट सेल होगा उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे। इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि आप इन रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में जोड़ दीजिए। ऐसा सोचिए कि R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, पैरेलल में जोड़ दीजिए आप, जो उनका पैरेलल इक्विवेलेंट आया। ये R0 क्या है, R1 और R2 का पैरेलल इक्विवेलेंट। तो इन दो रेजिस्टेंसेस का जो पैरेलल इक्विवेलेंट है वही इक्विवेलेंट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो सेल्स अगर ऐसे 2, 3, 4, 5 सेल पैरेलल में लगे हैं तो उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में रेजिस्टेंस मानकर जोड़ दीजिए, उससे जो वैल्यू मिली वही आपके इक्विवेलेंट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ठीक बात। नेक्स्ट हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। इक्विवेलेंट सेल का जो ईएमएफ है इट इज गिवन बाय दैट, इसका जो न्यूमरेटर है, सो इट इज E1/R1 E2/R2 डिवाइडेड बाय बेसिकली यू कैन से 1/R0। ठीक है, अभी ऐसे ही लिख दे रहा हूं, दिस इज नथिंग बट 1/R0। सो इक्विवेलेंट सेल का ईएमएफ कैसे लिखेंगे, तो E1/R1 E2/R2 divided by what is this, this is 1/R0। R0 क्या है, इक्विवेलेंट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। सो
आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो ऑफ कोर्स, आर नॉट E1 बाय R1 E2 बाय R2। तो बेटा ये याद करना है, दो सेल्स ऐसे पैरेलल में हैं, इनका रिप्लेसमेंट एक सेल चाहिए, तो R1 और R2 पैरेलल में रेजिस्टेंस है ऐसा मान के इक्विवेलेंट निकाल लो, तो ये R0 आ गया, यही इक्विवेलेंट सेल का रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ईएमएफ कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले, वो जो R0 निकाला इंटू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, दैट गिव्स यू द ईएमएफ ऑफ इक्विवेलेंट सेल। I hope I am making myself clear. If you have many such cells, identical cells in parallel, suppose there are n number of such branches, ठीक, ऐसा मान लो all are identical cells, n identical cells have been connected in parallel. There are n identical cells connected in parallel. इनका इक्विवेलेंट सेल, उसका ईएमएफ क्या होगा और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। वेरी सिंपल, जो इक्विवेलेंट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो आप यहां से पता लगा सकते हो। देयर आर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, आर n रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, ऐसा सोच के इक्विवेलेंट निकालो तो बहुत आसानी से सभी लोग निकाल लेंगे, इट विल बी R बाई N। ये कैलकुलेशन करने से R0 की वैल्यू आएगी R बाई N, 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस 1 बाई R n टाइम्स, तो N बाई R, R0 इज R बाई N। नाउ EMF, इक्विवेलेंट सेल का रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट सेल का EMF इस फॉर्मूले से, इनफैक्ट ई वोल्ट के 50 सेल पैरेलल में लगा दो तो भाई ईएमएफ ही रहेगा, कॉमन सेंस भी कहता है अगर सोच पाओ तो, और नहीं तो इसे कैलकुलेट करो। तो R0 की जगह पे तुम लिखोगे, अच्छा ऐसा लिख दूं, पहले देख लो जरा, E बाय आर ऐसा n टाइम्स होगा ना। R0 कितना है, R0 कितना है R बाई N, ये कितना आया n टाइम्स E बाई R, n और n कैंसिल हो गए, R और R कैंसिल हो गया, क्या मिला E। बहुत सारे सेम ईएमएफ के सेल अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दिए जाएं, आइडेंटिकल सेल्स को अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए, 2-2 वोल्ट के सेल हैं सारे, तो ए और बी के बीच में इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा, 2 वोल्ट। पैरेलल में लगाने से ईएमएफ नहीं बढ़ेगा, वो 2 ही वोल्ट रहेगा। और 1 ओम अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है, 50 सेल अगर तुमने लगा दिए हैं पैरेलल में, तो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया, 1/50 हो गया। सभी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर 1 है और 50 सेल पैरेलल में है तो 1/50 हो गया। तो इफेक्टिवली बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कम करना हो तो भी आप सेल्स को पैरेलल में जोड़कर बैटरी बनाएंगे, जिससे कि इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस जितना कम हो सके उतना कम हो। तो क्या लेसन है, n सेल्स आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में है तो इफेक्टिव ईएमएफ E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R बाई N है। प्लीज इसको याद रखिए। अभी जो आपने पढ़ा उसको यूज करके या किसी भी और दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए।
चलिए, इस सर्किट में यहां करंट बताइए, इस सर्किट में यहां करंट बताइए। सभी लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। एक तरीका है रूटीन किरचॉफ्स लॉ यूज करना, वो मुश्किल क्वेश्चन नहीं, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। दूसरा तरीका है कि भले ही ये इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो, भले ही ये कोई बाहरी रेजिस्टेंस ही है, आइडियल सेल है, हाउ डज इट मैटर। मैं मन में सोचूंगा कि अच्छा ये 10 वोल्ट का सेल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस 1 हो, ये 8 वोल्ट का सेल इंटरनल रेजिस्टेंस 1 हो, तो ये दो सेल पैरेलल में है ऐसा सोच के जो फॉर्मूला अभी पढ़ा उसको यूज करके मैं इस ग्रुप ऑफ सेल को एक सिंगल सेल से रिप्लेस कर सकता हूं चाहूं तो। जिसका इस ग्रुप को एक सिंगल सेल से रिप्लेस कर सकता हूं। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 1 and 1 in parallel, 1 and 1 in parallel makes half। इफेक्टिव ईएमएफ जो होगा ये आर नॉट E1 by R1 10 by 1 प्लस E2 by R2 8 by 1, आर नॉट की जगह लिख दे रहा हूं 1 by 2, ये हो गया 18 by 2 दैट इज 9 वोल्ट। तो इफेक्टिव ईएमएफ 9 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस हाफ ओम, दैट मीन्स इस सर्किट को मैं रिड्रॉ कर सकता हूं 9 वोल्ट हाफ ओम 2 ओम, इन दोनों सेल्स को रिप्लेस कर दिया इक्विवेलेंट से, जिसका ईएमएफ है 9 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है हाफ ओम। बस अब करंट लिखना बहुत ही सिंपल है। करंट इज 9 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 2.5, सो मेनी एम्पियर्स। आप आसानी से करंट को लिख सकते हैं। और आप इक्विवेलेंट सेल का फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो ऐसा नहीं कि आप हैंडीकैप्ड हैं, तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं किरचॉफ्स लॉ से। मान लीजिए यहाँ करंट I1 है, यहाँ I2 है, दोनों मिलके I1 प्लस I2 यहाँ 2 बार लूप इक्वेशन लिखिए, एक बार इसमें एक बार इसमें, या आप एक बड़ा लूप भी ले सकते हैं, सॉल्व कर दीजिए, आपको सारे करंट मिल जाएंगे। तो उस मेथड से भी आप ट्राई कर सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको ये फॉर्मूला पता ही हो, पता है तो अच्छी बात है, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी थोड़ी कहीं कहीं पे, लेकिन नहीं पता है तो आप हैंडीकैप्ड नहीं हैं। हमने जो भी पता किया इट वाज ऑल बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ। सो किरचॉफ्स लॉ is mother of all laws when it comes to solving problems related to electric circuits. So you know Kirchhoff's law, you know everything practically as far as circuits are concerned. Okay, so students, now we will try to learn about some electrical measurement devices, galvanometer, ammeter and voltmeter that you use very frequently in your school laboratories. One fundamental instrument is galvanometer. Galvanometer exact functioning of galvanometer is difficult to understand at this stage. I will tell you about the detailed construction of galvanometer
in the chapter of magnetism. When we will be studying magnetics, then I will tell you the exact construction of a galvanometer. How does a galvanometer functions? अभी आप सिर्फ ऐसा समझें कि a galvanometer is a current detecting device which is a very sensitive device and can handle only small currents. A galvanometer is a current detecting device. It is sensitive and can take only small currents. मोटा मोटी अभी सिर्फ बता रहा हूं आपको. एवरी गैल्वेनोमीटर हैज ए कॉइल. एक कॉइल है, wire made coil, which is placed between the poles of a magnet. It is placed in a magnetic field. When current is passed through the coil, suppose this is a drum, I wrap a coil over it and keep it between the poles of a magnet. When I pass current through this coil, the coil experiences a torque in magnetic field. This is what we will learn later on. That a current carrying coil experiences torque in a magnetic field. तो जब इस गैल्वेनोमीटर कॉइल से हम करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर एक टॉर्क एक्सर्ट करती है जिसकी वजह से वो कॉइल घूमता है. सो टू द कॉइल देयर इज ए पॉइंटर अटैच्ड टू इट. कॉइल के साथ एक पॉइंटर जुड़ा होता है. तो जब करंट पास करोगे कॉइल में तो कॉइल घूमेगी तो ये पॉइंटर भी घूमता है. एंड द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, द एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर इज प्रोपोर्शनल टू द करंट पास थ्रू द कॉइल. अगर आपने कॉइल से यूनिट करंट पास किया, 1 माइक्रो एम्पियर करंट पास किया, डिफ्लेक्शन 10 डिग्री हुआ. तो जब आप 2 माइक्रो एम्पियर करंट पास करोगे तो डिफ्लेक्शन 20 डिग्री होगा. द डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू द कॉइल. तो ये डिटेल कंस्ट्रक्शन जैसा मैंने कहा हम आगे पढ़ेंगे. अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि करंट को डिटेक्ट करने के लिए एक सेंसिटिव डिवाइस है गैल्वेनोमीटर. इसमें एक कॉइल होता है. ऑफकोर्स कॉइल है तो उसका कुछ रेजिस्टेंस भी होता होगा. एक कॉइल है जिसमें करंट देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में रखा वो कॉइल रोटेट करता है, डिफ्लेक्ट होता है और उससे लगा एक पॉइंटर वो चलता है. तो मोटा मोटी बाहर से देखने पे गैल्वेनोमीटर में एक स्केल बना है. एक पॉइंटर लगा है. ये एक ग्लास के विंडो में आपको ये स्केल और पॉइंटर दिख रहा है और ये पॉइंटर एक्चुअली में अंदर में एक कॉइल से जुड़ा है जो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी है. तो जब हम, ये एक बॉक्स में बंद है और इस कॉइल के 2 एंड्स, 2 टर्मिनल बनकर बाहर निकले हुए हैं. तो जब हम इस गैल्वेनोमीटर के इन 2 टर्मिनल्स को किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ते हैं और यहाँ करंट इन होता है, इस कॉइल में करंट जाता है, तो ये जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट होता है. ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है. तो जैसे ही पॉइंटर डिफ्लेक्ट हुआ हम समझ गए कि जिस सर्किट में आपने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया है वहाँ करंट है. कॉइल में करंट गया, जब करंट जाएगा तो ही डिफ्लेक्शन हो. करंट नहीं होने से कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो. तो जैसे ही गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया हम समझ गए अच्छा करंट है. सेकेंडली, अभी डिफ्लेक्शन इतना है, करंट को आप थोड़ी देर में देखते हैं कम किया आपने या करंट चेंज हुआ और आप देखते हैं डिफ्लेक्शन हाफ हो गया. ये पॉइंटर यहाँ आ गया, कम डिफ्लेक्ट हो रहा है, करंट कम हो गया, करंट हाफ हो गया.
So the amount of deflection is proportional to current. That is another thing. पहला तो डिफ्लेक्शन मतलब करंट, दूसरा जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा करंट, तीसरा ये गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन ऑफ करंट भी बताता है। जैसे किसी सर्किट में आपने इसको लगाया और करंट ऐसा नहीं ऐसा फ्लो कर रहा है, मतलब इस टर्मिनल से इन होके इस टर्मिनल से आउट हो रहा है उल्टा, तो ये जो पॉइंटर है ये उल्टे डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है। तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली आपको तीन चीजें बता रहा है। एक, डिफ्लेक्शन मतलब करंट, हायर द डिफ्लेक्शन हायर इज द करंट, लोअर द डिफ्लेक्शन लोअर इज द करंट, एंड थर्ड it tells you the direction of current. I mean, for a particular direction of current, if deflection is this way, then if the direction of current is reversed, the deflection will go other way. So if direction of current changes, that can also be detected using galvanometer. So it is a sensitive instrument and can take only small currents, typically of the order of microampere or maybe milliampere, not larger than that. बहुत बड़ा करंट अगर इसमें आप देंगे तो ये इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा, उसका कॉइल जल जाएगा, ऐसा सोचो। तो इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट एंड ओनली स्मॉल करंट शुड बी सप्लाइड टू इट. It is a current detecting device. It is sensitive and take small currents. Deflection is proportional to magnitude of current, and it can detect change in direction of the current. ठीक है, तो आपके लेबोरेटरी में जो गैल्वेनोमीटर होता है वो टिपिकली इसी तरह का होता है। हालांकि हम ऐसा गैल्वेनोमीटर भी बना सकते हैं जिसमें एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन अलाउड है, ये जीरो है। जब कोई करंट नहीं है तो पॉइंटर यहाँ है और करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, पॉइंटर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जाना अलाउड है, दूसरे डायरेक्शन में जाना अलाउड नहीं है। तो ऐसे गैल्वेनोमीटर में लिखा होगा ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब आप हाई पोटेंशियल एंड को यहाँ जोड़िए, लो पोटेंशियल एंड को यहाँ, करंट इधर से इन होगा, डिफ्लेक्शन इधर होगा, ओनली वन वे डिफ्लेक्शन इज अलाउड। ऐसा गैल्वेनोमीटर भी ऑफकोर्स आप बना सकते हैं, पर आपके लैब में जो नॉर्मली गैल्वेनोमीटर है उसको हम यूज़ करते ही हैं कई जगहों पे करंट का डायरेक्शन रिवर्स हुआ कि नहीं चेक करने के लिए। ऐसा आगे आप देखेंगे कई एक्सपेरिमेंट्स में उसका ये यूज़ है। तो ऐसे गैल्वेनोमीटर भी होते हैं। ऐसे गैल्वेनोमीटर में कोई प्लस माइनस टर्मिनल नहीं है, आप किसी को भी हाई पोटेंशियल एंड पे कनेक्ट कर दो, इसको हाई पोटेंशियल एंड पे जोड़ा तो शायद इधर, इसको जोड़ा तो शायद इधर, तो देयर इज नो प्लस माइनस टर्मिनल मार्क्ड ऑन इट। लेकिन ऐसा गैल्वेनोमीटर ऑफ कोर्स हम बना सकते हैं जिसमें प्लस माइनस टर्मिनल मार्क किए हुए हो। गैल्वेनोमीटर की स्पेसिफिकेशन में दो चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट। एक गैल्वेनोमीटर की स्पेसिफिकेशन में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहली चीज है उसके कॉइल का रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या है, उसके अंदर में कॉइल है जैसा मैंने बताया, तो जब करंट पास होगा तो दैट कॉइल विल ऑफर सम रेजिस्टेंस। तो द गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट एज ए होल हैज सम रेजिस्टेंस, इजंट इट? तो उस गैल्वेनोमीटर के कॉइल का रेजिस्टेंस, आप दुकानदार के पास जाएंगे बोलेंगे गैल्वेनोमीटर दो, पूछेगा कैसा गैल्वेनोमीटर चाहिए। आप दुकानदार के पास जाते हैं बोलते हैं फैन दो, तो आपसे पूछता है भाई कि 36 इंच का फैन चाहिए कि 48 इंच का, मतलब डायमीटर 36 इंच चाहिए या 48 इंचेस चाहिए। तो ऐसे गैल्वेनोमीटर पूछेगा वो आपसे कौन सा गैल्वेनोमीटर चाहिए आपको, तो आप उसको दो बातें बताते हैं, मुझे 20 ओम रेजिस्टेंस वाला गैल्वेनोमीटर दो, मीन्स उसके कॉइल का रेजिस्टेंस 20 ओम होना चाहिए। तो स्पेसिफिकेशन में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहली रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, इसको हम RG लिखा करेंगे, ठीक है, R फॉर रेजिस्टेंस, G फॉर गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है
फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। इसको मैं IG लिखा करूंगा। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मीन्स कितना करंट पास करने से गैल्वेनोमीटर का कांटा बिल्कुल आखिरी डिफ्लेक्शन पॉइंट तक चला जाता है। यह ऐसा गैल्वेनोमीटर है, तो जीरो से ये एक्सट्रीम है, दिस इज द मैक्सिमम करंट इट कैन हैंडल, यू शुड नॉट पास करंट हायर देन दिस इज द मैक्सिमम करंट इट कैन टेक। IG करंट दिया 1 मिली एम्पियर दिया, यहाँ गया 2 मिली एम्पियर, यहाँ 3 मिली एम्पियर, यहाँ ये बिल्कुल स्केल के एंड पे चला गया। फुल स्केल डिफ्लेक्शन लाने के लिए कितना करंट देंगे, दैट इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। उससे ज़्यादा करंट हम गैल्वेनोमीटर से पास नहीं करेंगे, खराब होने का रिस्क है। तो नॉर्मली जब हम गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो यही दो स्पेसिफिकेशन हम बताते हैं। हम बताते हैं कि गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस इतना है और हमारे गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। जैसे मैंने कहा कि आई हैव अ 2 मिली एम्पियर 20 ओम गैल्वेनोमीटर। मैंने कहा कि मेरे पास एक 2 मिली एम्पियर 20 ओम गैल्वेनोमीटर है। उसका मतलब हुआ उस गैल्वेनोमीटर में 2 मिली एम्पियर करंट देने से फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है और उस गैल्वेनोमीटर के कॉइल का रेजिस्टेंस 20 ओम। स्टूडेंट्स, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ रादर, कि आपको गैल्वेनोमीटर का डिटेल कंस्ट्रक्शन मैग्नेटिक्स के चैप्टर में पढ़ाऊँगा। अभी मैंने आपको सिर्फ ये याद करने को कहा कि गैल्वेनोमीटर एक करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है, उसमें करंट पास करो, एक पॉइंटर है जो डिफ्लेक्ट होता है। हायर द करंट हायर इज द डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। और इस गैल्वेनोमीटर के स्पेसिफिकेशन में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। शायद आपके कोई भी ऐसा मीटर जो ऐसा चलता हुआ दिखे, मोस्ट लाइकली इट इज़ ए गैल्वेनोमीटर। वो आपका जो बाइक है, बाइक में जो स्पीडोमीटर है, मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ ए गैल्वेनोमीटर। आपकी बाइक, देयर इज ए मैकेनिज्म जिससे आपकी बाइक जितनी ज़्यादा स्पीड पे चलती है उतना ही हायर करंट उसमें पास होता है एंड दी पॉइंटर डिफ्लेक्ट्स। तो जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन उतनी ज़्यादा स्पीड। तो वहाँ मीटर पे लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर, वहाँ करंट नहीं लिखा हुआ है, बट एक्चुअली वो एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें हम करंट पास कर रहे हैं, एंड दी हायर दी करंट हायर इज द डिफ्लेक्शन। तो गैल्वेनोमीटर, जैसा मैं कह रहा हूँ कि बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है एंड इट कैन हैंडल ओनली वेरी स्मॉल करंट्स, बट हमारी डेली नीड में हमें बड़े करंट को भी मेज़र करने की ज़रूरत पड़ सकती है, एक बड़े पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो गैल्वेनोमीटर एक फंडामेंटली पॉइंटर स्केल अरेंजमेंट है, करंट पास करो पॉइंटर चला, पर वो बहुत छोटा करंट ले सकता है। मुझे बड़ा करंट नापना है, 5 एम्पियर 10 एम्पियर 20 एम्पियर का, उसके लिए हम इस गैल्वेनोमीटर को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और बड़े करंट को भी मेज़र कर पाएंगे। जब हम अपने गैल्वेनोमीटर को ऐसा मॉडिफाई करते हैं कि वो बड़े करंट को भी मेज़र कर सके, तो हम उसको आमीटर कहते हैं। गैल्वेनोमीटर को हम दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो उस डिवाइस को हम वोल्टमीटर कहते हैं। तो एक गैल्वेनोमीटर से आमीटर और वोल्टमीटर कैसे बनाना है, ये अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।